Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, in this class we will discuss about the natural system of classification. In the previous class we have studied the artificial system of classification. In this class we will discuss about the natural system of classification. Why this system is called is the natural system of classification. What was the base of this classification? What is the alternate name of this classification? And कौन से साइंटिस्ट थे जो इसके साथ एसोसिएट थे? इनिशियली वर्क कौन से साइंटिस्ट ने किया था? एंड मेन जो वर्क है, जो प्रैक्टिकल वैल्यू, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन वो किसने दिया था? और उस जो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है उसका थोड़ा सा हम यहाँ पे एक स्केच भी ड्रा कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेस किया था. एक तो ये कि जो एक क्राइटेरिया, इसमें जो क्राइटेरिया इस्तेमाल किया गया था, द क्राइटेरिया दैट वाज यूज्ड फॉर दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम, one criteria was the morphology, which were also used in the artificial system of classification, but along with that anatomy, cytology, physiology, embryology is also used for this classification. This criteria is also taken for the classification. Due to this reason, this is called dimension system of classification. Artificial system of classification, dear student, is also called monodimensional or single dimension system of classification, because in this artificial system only one criteria, one base morphology was taken for the classification. Here along with the morphology another criteria is also taken, that is anatomy, cytology, physiology and embryology. Due to this reason this type of classification is also called two-dimension system of classification. And this classification, why it is called as natural? Because this classification on the base upon the natural affinity among the living organism. This classification was based upon the natural affinity among the living organism. Due to this reason this classification is also called natural system of classification. अब कौन से साइंटिस्ट थे जो इस क्लासिफिकेशन के साथ एसोसिएट हुए थे? वन जोहन रे, डिकेंडोला और बेंथम एंड हुकर. ये कुछ साइंटिस्ट थे जो इसके साथ एसोसिएट थे. लेकिन इसमें जिसने पायोनियर वर्क फर्स्ट टाइम वर्क किया था वो जोहन रे था, और जो मेन मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन दिया था, जिसने बहुत ज्यादा काम इस पे किया था, और जो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है वो बेंथम एंड हुकर का है. तो बेंथम एंड हुकर plant is classified into two groups. One is a cryptogame and second is a phanerogame. In cryptogame he put all the non-flowering plant, put all those plant their reproductive organ, mean their reproductive organ are embedded in their body, not expose their reproductive body. Shortly we can call this is a non-flowering plant. He put all the non-flowering plant in this category, like algae, bryophyte, pteridophyte, and the second group is the phanerogame. He put the all plant into two groups. One is the cryptogame, second is the phanerogame. In this phanerogame he put all the flowering plant, and this phanerogame is again he divided into three categories. One is a dicotyledon, gymnosperm and monocotyledon. In dicotyledon he put all those plants which have two cotyledon. So what is meant by cotyledon? Inshallah we will discuss detail in the when we discuss we explain the seed of plant that. तो इस कैटेगरी में उसने वो तमाम प्लांट ही पुट कर लिए जिसके अंदर दो कार्टिलेडन मौजूद थे. ये एम्ब्रियोनिक लीफ है. इंशाल्लाह हम उस सीड में डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे. सेकंड प्रॉपर्टी इट हैज जो द रेटिकुलेट वेनेशन. ही पुट ऑल द प्लांट दैट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, आल्सो पुट इन dicot. Third one is that their flower is pentamerous, mean mostly they are sepal petal composed, five sepal, their flower composed of five sepal and petal. Due to this reason their flower is called pentamerous. And the next property was that they have open vascular bundle. Open vascular bundle का क्या मतलब है? एनाटॉमी में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन इतना सिर्फ कि जब वेस्कुलर बंडल जो जाइलम है और जो फ्लोएम, अगर इसके अंदर कैम्बियम मौजूद हो, वेस्कुलर कैम्बियम, तो इसको हम कहते हैं ओपन. और जिसके अंदर मौजूद ना हो तो उसको हम कहते हैं क्लोज वेस्कुलर बंडल. तो डाइकाट के अंदर तो जो वेस्कुलर बंडल है वो भी ओपन मौजूद है, और इसी वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ भी इसमें होते टेक्स प्लेस होते हैं. और जो मोनोकाट है उसमें उसने तमाम plant put करिए वो plant that have single cotyledon. Along with that their venation is parallel. Third, their vascular bundle is closed. And one important feature in the monocot was that they have no clear differentiation in the sepal and petal, but all
were present in the one whorl that is called perianth. तो उसके अंदर पेरियंथ भी मौजूद थे और क्लोज वेस्कुलर बंडल और सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट थे। तो उसने वो तमाम प्लांट मोनोकाट की कैटेगरी में पुट कर लिया। इसके बाद उसने एक और कैटेगरी जिम्नोस्पर्म, इनके दरमियान जो पोजीशन दिया जिम्नोस्पर्म को दिया और इसमें उसने वो तमाम प्लांट पुट कर लिए। जिम्नो का मतलब है नेकेड, स्पर्म का मतलब है सीड, यानी जिसके सीड नेकेड थे। तो जिम्नोस्पर्म का सीड नेकेड क्यों है ये तो हम डिटेल में जिम्नोस्पर्म के में पढ़ेंगे भी, लेकिन सिर्फ इतना ही सुनना कि द सीड इज आल्सो फॉर्म always is formed from the ovule and ovule is present inside the ovary, so it means that their seed is naked. It means the ovary is absent in the gymnosperm. For example, this is a female reproductive part of plant and this is a ovary. Inside this ovary this is a ovule. ये ओव्यूल मिच्योर होके सीड में कन्वर्ट होते हैं और ये जो ओवरी ये फ्रूट में। तो इसका मतलब ये है कि जिम्नोस्पर्म है ओनली सीड and their seed is a naked. It means the ovary is not present in the gymnosperm. And again this dicot plant he classified, Bentham and Hooker again classified into three series. One Polypetalus, Gamopetalus and Monoclemidae. In Polypetalus he put all those plants that having a free petal, mean their petal is not fused but they are separate from one another. And in Gamopetalus he put all those plants that their petal is a fuse with one another. And Monoclemidae that their petal sepal differentiation is absent but both are present in one whorl, that is a perianth. This Gamopetalus is again he divided into the three category. One is inferi, second heteromere, number 3 bicarpellate. इस कैटेगरी में जो inferi उसमें वो तमाम पुट कर लिए जिसमें ओवरी इंफीरियर हो। तो ओवरी इंफीरियर तो हम फ्लावर में पढ़ेंगे कि इंफीरियर, सुपीरियर, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस फ्लावर, ये तो हम फ्लावर में एक्सप्लेन करेंगे। और इसके अंदर भी ओवरी सुपीरियर है और इसके अंदर भी ओवरी सुपीरियर है। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज जनरल आउटलाइन, दिस वाज वन, ये एक खाका है जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है और बेसिकली जो बेंथम एंड हुकर ने दिया था। और इस क्लासिफिकेशन में हमने शॉर्ट ही टाइम में ये मेंशन कर लिया, ये एक्सप्लेन किया कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को नेचुरल सिस्टम क्यों कहते हैं, इसका बेस किया था, इसका अल्टरनेट नेम किया है, इस पे इनिशियली वर्क किसने किया था, जो है ना, और मोस्ट एक्सेप्टेबल जो क्लासिफिकेशन ज्यादा काम जो किया था मोस्ट एक्सेप्टेबल है नेचुरल में, वो है बेंथम एंड हुकर। और ये भी एक्सप्लेन किया व्हाई इट इज कॉल्ड natural because this classification on the base upon natural affinity among the living organism. इसके बाद हमने बेंथम एंड हुकर को एक्सप्लेन किया कि बेंथम एंड हुकर ने ये जो एक पॉइंट जितने भी प्लांट थे तो प्लांट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, क्रिप्टोगेम को और फेनेरोगेम को। और ये भी याद रखना इस फेनेरोगेम के उसने 200 फैमिली बनाए थे और उस 200 में 165 डाइकाट के थे, 165 और जिम्नोस्पर्म के 3 और इसके जो फैमिली थे वो थे 34 मोनोकाट के। मतलब उसने ये जो फेनेरोगेम के टोटल 202 फैमिली बनाए थे और इन दिस 202 165 वाज द डाइकाट फैमिली, 3 वाज जिम्नोस्पर्म एंड 34 इवादा मोनोकाट फैमिली। और इसी को क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर वो भी हमने एक्सप्लेन की। इसके साथ साथ शॉर्ट लाइन में ये भी कि डाइकाट को अगेन 3 सीरीज में डिवाइड किया था जिसमें पोलीपेटेलस, गेमोपेटेलस, मोनोक्लेमाइडी। इन अ पोलीपेटेलस ही पुट ऑल दोस प्लांट दैट देयर पेटल आर फ्री। इन द गेमोपेटेलस पेटल वाज fuse in Monoclemidae perianth. Monoclemidae and other related term to flower we will also discuss in the lecture of flower. And this Gamopetalus is again divided into inferi, heteromere and bicarpellate. तो इसमें inferior ovary, इसमें superior ovary है। Now dear student, we will discuss what was the positive point in this classification and what was the negative point. So see it. So dear student, अब हम पढ़ेंगे कि इस क्लासिफिकेशन के पॉजिटिव पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट था। If we see to this classification, one positive point of this classification was that he give advanced position to the monocote. उसने मोनोकाट इस क्लासिफिकेशन में बेंथम एंड हुकर ने मोनोकाट को एक एडवांस पोजीशन दिया। किस तरह, अगर इस तरतीब को आप देखें कि यहाँ पे डाइकाट है, जिम्नोस्पर्म है और यहाँ पे मोनोकाट है और कन्वेंशन मेथड में जो चीज हम
इस साइड पे लिखते हैं इसका मतलब ये प्रिमिटिव है, और इस साइड पे जो लिखते हैं ये है एडवांस है। तो लिहाजा इसने मोनोकाट को इस यहाँ पे पोजीशन दिया, इसका मतलब ये है कि मोनोकाट एडवांस है देन डाइकाट। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख ले या रिसेंटली व्यू देख ले तो मोनोकाट के अंदर एक ही कार्टिलिडन है। इन मोनोकाट देयर इज सिंगल कार्टिलिडन, बट इन डाइकाट देयर इज अ डबल कार्टिलिडन। मीन इन मोनोकाट देयर इज अ रिडक्शन ऑफ कार्टिलिडन विद रिस्पेक्ट टू नंबर यानी मतलब मोनोकाट के अंदर कार्टिलिडन की तादाद कम है एज कंपेयर टू डाइकाट। देयर इज रिडक्शन ऑफ कार्टिलिडन विद रिस्पेक्ट टू देयर नंबर। Mean in monocot is a single, but in dicot it is a two. And reduction, we know that the reduction is a one advanced feature. Reduction is also one the advancement in a living organism. तो हम कह सकते हैं कि उसने जो पोजीशन दिया था monocot को, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है उसका, ये उसने करेक्ट पोजीशन दिया था। और दूसरा उसने इसी ही जो प्लांट है फेनुग्रे में उसमें एक ऑर्डर को पुट किया था रेनेल्स। तो रेनेल्स में उसने रेनेल्स को एक प्रिमिटिव पोजीशन दिया, और रेनेल के अंदर जो प्लांट है उसके अंदर जो ओवेरी वो सुपीरियर है, और सुपीरियर ओवेरी मॉडर्न जो व्यू है वो कहते हैं कि जो सुपीरियर ओवेरी है वो एक प्राइमेटिव एडवांस नहीं है बल्कि प्राइमेटिव प्रॉपर्टी है, प्राइमेटिव कैरेक्टर है। या जो इंफीरियर है वो इससे एडवांस है। तो लिहाजा जो सुपीरियर ओवेरी के प्लांट थे जो ऑर्डर है रेनेल, उसने उसको एक प्रिमिटिव पोजीशन दिया, प्रिमिटिव कैटेगरी में रख लिया। ये भी उसका एक पॉजिटिव पॉइंट था। अब उसके नेगेटिव किया है। नाउ वी विल सी जो थे टू द नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट वाज दैट दिस क्लासिफिकेशन वाज नॉट बेस्ड अपॉन फाइलोजेनी, एंड वी नो दैट द फाइलोजेनी evolutionary study is a very essential for the classification. According to Takhtajan, without phylogeny taxonomy is just like bone without flesh. और second उसने जिम्नोस्पर्म को रॉन्ग पोजीशन दिया। सेकेंड गिव रॉन्ग पोजीशन टू जिम्नोस्पर्म। हाउ? अब देखते हैं यहाँ पे उसने डाइकाट लिख लिया, इसके बाद उसने जिम्नोस्पर्म लिखा, और जिम्नोस्पर्म के बाद उसने मोनोकाट। इसका मतलब यह है कि ये जो जिम्नोस्पर्म है वो डाइकाट से आए हुए, लेकिन असल में यह है कि जिम्नोस्पर्म ये प्रिमिटिव है, ये डाइकाट से, मतलब ये प्रिमिटिव है जिम्नोस्पर्म, और डाइकाट तो एंजियोस्पर्म है वो तो एडवांस है जिम्नोस्पर्म से। तो ये जो पोजीशन उसने दिया था ये पोजीशन भी उसके एक रॉन्ग थी, ये एक मिस्टेक थी, नेगेटिव पॉइंट थी। सेकंड वन वाज दैट द Argyraceae is a one advanced family, but in his classification the position of Argyraceae was in the primitive family categories. This was also one negative point. Some other negative point was that there's so many flower character is used for this classification by Bentham and Hooker, but some character is also negligible, and some monocot family is also give wrong position. The advanced family are put at the primitive position, and the primitive is put in the advanced. So this was also some drawback in this system of classification that was performed by the Bentham and Hooker. So dear student, this was about the natural system of classification. In the next class we will discuss about the phylogeny classification system, और इसके बाद इंशाल्लाह हम जो आवर ग्रुप है प्लांट का टेक्सोनॉमी के ब्रांच है, टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी है, कुछ फैमिली के भी लेक्चर देंगे, स्पीशीज वगैरह टेक्सोनॉमी जितने भी रिलेटेड उस पर भी लेक्चर देंगे। थैंक यू वेरी मच।